Alright, what's up guys? Welcome back to the new session of our oratory. और आज है थर्सडे एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो अराउंड 7:15. मैं कुछ दिनों से तीन तीन मैं यस फॉर 3 days आई वाज क्रिएटिंग वीडियोस अराउंड आफ्टरनून. मैं आफ्टरनून को वीडियो शूट कर रहा था बिकॉज ऑफ सम वर्क्स, वरना जल्दी ख़त्म करने के लिए, वरना जस्ट नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट इन शॉर्ट. तो मैंने जल्दी शूट करने का सोच रहा था एंड आई वाज प्रीटी सक्सेसफुल टू इट क्योंकि इट वाज टेंड टू बी प्रोक्रेस्टिनेटेड अगेन. सो आज मुझे बाहर जाने का था एंड आई वाज deciding to not to shoot a video, but now means I cannot give any excuses because I just want to improve on my communication. Means on my how do I talk in front of the camera. मैं कैमरा के सामने कैसे बात करता हूँ, मुझे उसको actually I need to improve. That's why I do this. So आज है हमारा day 4 of going to our lowest body fat, and this is how we look. I think I have seen massive change in these 4 days. Uh, बिकॉज यूजली दिस टाइम वी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी निकलता है हमारे बॉडी में से पानी सब निकलता है. बिकॉज ऑफ दैट वी लुक मच मोर स्किनियर, वी एक्चुअली लुक बिट ऑफ अ chiseled, and because of that I will be looking a bit leaner this time. So it's like it's pretty good, like it's a pretty good trade off because मुझे तो 4 दिन में ऐसा इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई जस्ट वांट टू सी आफ्टर अ मंथ. After 6 weeks, I just want to see how shredded and how lean I'm going to look like, because I'm focusing on being on a 12% body fat. But just seeing me like this, I think I'm on a lower body fat than I'm thinking. But let's see how it's gonna be, because we cannot say anything. Most of the time हम लोग कभी भी अपने खुद के body fat कभी भी हम बताते हैं दूसरों को कुछ ज़्यादा ही कम बताते हैं. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम खुद को देखते हैं, हम मीन्स व्हेन वी टेक्सा स्कैन वो सब देखते हैं, तो 15 से 16% बॉडी फैट में निकलता है. एंड मैं एक्चुअली 15 से 16 बॉडी फैट परसेंटेज को ही पकड़ रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. बट मुझे लगता है 2 महीने बाद शायद से मैं उतने बॉडी फैट परसेंटेज में रहूँगा नहीं. आई विल बी अराउंड 11 to 12 और आइदर बी इन सब 10. कान से एनीथिंग बिकॉज मेरा बॉडी फैट मैंने एक्चुअली चेक भी नहीं किया. मैंने जो वो वाटर जो जिम में जब चेक करते, आई हैवंट चेक दैट. सो अभी रिसेंटली मेरा जो ट्रेनिंग स्टाइल है मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. जैसा मैंने बल्क में कैसे कर रहे थे, वी यूज टू ट्रेन 6 days a week. तो मैं 6 दिन के लिए ट्रेन करता, बट एट अ वेरी लो वॉल्यूम. अभी मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, सो मैं रिसेंटली अभी 3 days शेड्यूल में ट्रेन कर रहा हूँ. अभी मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, इट्स लाइक ऑन मंडे. सो मंडे को मैं ट्रेन करने वाला हूँ. मंडे को मैं ट्रेन करता हूँ चेस्ट, डूइंग some incline presses, doing some dips, doing some bicep curls, and doing some triceps. That's all. It's like a chest and arms. और मैं थोड़ा सा leg raises मारता हूँ just to get that lower abs. और yeah, and that's it. Legs में Wednesday को मारता हूँ where I do heavy squats and heavy deadlift मैं करता हूँ at that time. And that's it. And I do some rear delts. So this is a rear delt. It's pretty means it's pretty, I mean what can I say, it's pretty undominant, means इसमें dominating मेरा body नहीं है. I mean I need to work on my rear delts much more this in my cutting session. So I will be also focusing on that too. And my lateral delts को तो ऐसे भी focus कर रहा हूँ. ऐसे भी I'm training 2 times the shoulders. I mean it's like doing some lateral raises on Monday and lateral raises on Friday. So I'm working 3 days a week. And मैं Friday को मैं कल जो मेरा जो वर्कआउट सेशन होने वाला है जो Friday को, it's gonna be much more of a shoulder and back. Doing shoulder and back session or during that time will be much more greater, क्योंकि मुझे लगता है कि I will be crushing that shoulder press. I will be doing that heavy set, big heavy set. और मैं first set में वही करूँगा. And I will be doing big heavy set for the pull-ups. And I think I will be also doing some chest fly to get the upper chest. And upper chest को ट्रेन करने के बाद मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने rope curls, biceps मारूँगा थोड़ा. And I will be doing, wait a second, और उसके बाद मैं मारूँगा अपने lateral delts just to get the V-shaped look, to get the superhuman look. So that will be my usually upper body plan. And ये मैं अपने जो मैं अभी अपने कटिंग में पूरा I think 2 महीने तक मैं यही फॉलो करने देखूँगा. And I will be also using high volume शायद से मैं 2 week यूज़ करूँगा. And when I will be going on low deficit.
sorry for the interruption क्योंकि अभी जब बाहर अभी दिवाली सब हो रही है, that's why they are actually cracking fireworks. So इसके लिए मुझे थोड़ा आप आगे पीछे ब्रेक लेना पड़ता है. So what I was talking about is I just work out 3 times a week. So we mostly So today I was going to आज मैं सोचने वाला था कि आज मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा because of some reason, because of my some mind reptile mind की reason की वजह से मैंने आज शूट नहीं कर पाया. But I just want to rehearse my script. So मैं क्या करने वाला हूँ. So most of the time the video is about why people can't eat more, why people can't bulk up. So क्या होता है कि कभी भी आपको मूवी स्टार जैसे फिजिक चाहिए, आपको ऐसे एकदम ड्रीमी एस्थेटिक फिजिक चाहिए, यू नीड टू बल्क अप, राइट. आपको सीधा कट नहीं कर सकते, यू नीड टू बल्क अप टू पुट ऑन दैट सीरियस लेवल ऑफ मसल मास एंड टू जस्ट टू गेन स्ट्रेंथ यू नीड टू मीन्स टू हैव मसल यू नीड टू गेन स्ट्रेंथ बट and to gain strength you need to be a slight calorie surplus which you need to, which is called as a lean bulk, or in my video as I say the movie star bulk. So you need to be actually even 200 to 250 calorie surplus में रहना पड़ता है. पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोगों से खाया ही नहीं जाता, लोगों को इतना ज़्यादा एपेटाइट नहीं होता. जो उन्होंने कैलोरी जो भी कैलोरी उन लोग सेट करते हैं, जो अपने दिन में जो कैलोरी सेट करते हैं फॉर देयर बल्किंग, दे एक्चुअली डोंट मीट अप द कैलोरीज. उन लोग अपने खुद को एक दूसरे को उन लोगों को खुद को फोर्स फीड करना पड़ता है खाना, और उसकी वजह से they actually stay up in a maintenance varna, and the worst case scenario they are actually in a deficit. So उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए तो पहली बात तो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं. दे आर फ्रीकिंग ऑब्सेस्ड विद द वेइंग स्केल. ठीक है, वेइंग स्केल से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि दे नीड टू सी सम इम्प्रूवमेंट्स वीक बाई वीक. देखना चाहते हैं कि 1 kg 2 kg जब वो वेट स्केल नहीं जाता है लोगों का, जब विच इज़ एक्चुअली प्रीटी हाई 1 kg 2 kg एक्चुअली इट शुड बी 250 grams is the sweet spot, which I already said that you need to be 200 to 250 calorie surplus. You can't be actually every time be precise, but you can actually be figuring out. So back to the topic, बोले तो they are pretty much obsessed with the weighing scale. उनको weighing scale में जब तक मूव नहीं होएगा तो उनको लगता है कि they are not actually in a surplus, but that's a wrong thing. First find the intent. ठीक है, पहले intent देखो कि why are you in a surplus. Why are you in surplus? Just to gain some muscle, and muscle के साथ it's a byproduct of strength. So for the strength gain आपको पहले बात surplus मिलना चाहिए. You can actually be gaining strength on a deficit, no props, but you can actually gain much more strength, much more differentiate from the people on the deficit. You can actually be gaining much more strength on the surplus. So that's why I recommend that if you're someone that wants to gain 10 pounds of muscle, to gain muscle you need to actually doing the strength, but to gain to strength you need to progressive overload, and to progressive overload you need the calorie surplus. But just don't forget the intent that you need to gain strength, because people actually forget that they actually need to put on some muscle, and to put on some muscle you need to be on a strength, and you need to bump up your strength. So forget about weight scale, but actually focus on how are you progressing on your workouts. देखो कि वीक बाय वीक कितने अपने वेट जा रहे हैं, कितने ज़्यादा आप रेप्स मार रहे हो, कितना वेट ऐड कर रहे हो, विच इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन द शॉर्ट. सो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले अपना वेट चेक, पहले अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दोगे योर एपेटाइट रैम्प्स अप. इट डज नॉट रैम्प्स अप, पर आपके पास एक इंटेंट रहती है कि आप क्यों खाना खा रहे हो. इफ़ यू आर जस्ट बिजी फोकसिंग ऑन जस्ट सीइंग द वेट गेन, वेट स्केल को देखते हो, इट्स प्रीटी मच फाइन. इफ अगर आप एक अपने लास्ट वन एक एकदम सेट माइंड सेट के साथ अपना बल्क खत्म करना चाहते हो. बट इफ़ यू आर समवन अबाउट 15 60 45, इन माई स्टोरी मैं अपना वेट चेक कर रहा था हर वीक, एंड इट वॉज प्रीटी कंसिस्टेंट बिकॉज आई वॉज प्रीटी मच डैम ऑन इट. तो मैं बहुत ज़्यादा फिक्स रेट था, बट आई हैड इंटेंट कि मुझे अपना लिफ्ट्स को ऊपर लाना है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू ईट मोर. ओके, सो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट. सो दैट्स इट. अभी मुझे बाहर जाने का, एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस टुमारो इन आवर डिस्कशन. बाय.